اور اگر آپ کے کھولڈ کو میں کھولڈ بیہیویئر کے طور پر لیتا، اگر میں آپ کو انگیج نہیں کر پاؤں گا تو کین آئی بی اے ٹرینر؟ اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ ایک جملہ بول کے ٹھیک ہے ہو گیا، اس کے بعد پھر وہی. چونکہ کہتے ہیں موت کیا ہے؟ تھکن خیالوں کی. آئی ایم گیونگ یو اے چانس، پرووائڈنگ یو ود اے چانس اینڈ یو آر ویلنگ اٹ آف. جب آپ کہتے ہیں میں پھر صبر کر لیا، اصل تسی جبر کر لیا. صابر بے چین نہیں ہوتا، جابر بے چین ہوتا کہ اس کی عطا ہے اور میں سے جی کے دکھاؤں گا کہ اس کا حکم کا میں نتیجہ ہوں. تعارف میرا ٹاپک دیکھ لیجئے گا، یہاں پر ایک کمیونیکیشن از/ان لائف. تو اگر اس ٹاپک کو ہم لمحہ بھر کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ از اور ان کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے. تو کیا میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں کہ ساتھ والے کس طرف ذرا منہ کر کے ٹاپک پر ذرا گفتگو کر کے دیکھیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کمیونیکیشن از. would you please share something? Yes sir. Come on please. سر بیسیکلی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں. Sir. لائک فار انسٹنس اگر ہم بات کریں تو ایز اے ہیومن بینگ ہم بات کرتے ہیں، دونوں وربل نان وربل دونوں ٹائپ کی کمیونیکیشن ہم یوز کرتے ہیں. جناب تو مطلب اگر دیکھا جائے تو اگر ہم نہیں بات کرتے تو وہ زندگی اس طرح سے ایکسپریس نہیں کی جا سکتی جناب. تو وہاں پہ ایز ہم یوز کر سکتے ہیں. تو اگر ہم دوسری سائڈ پہ بات کریں جس طرح لیونگ تھنگس تو ہیں، پلانٹس وغیرہ ہیں، اینیملز ہیں، وہ مطلب وہ کمیونیکیٹ تو نہیں ہمارے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہوتے سر، لیکن لیونگس ہیں وہ. تو مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لائف اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. سر. تو ایز اور ان دونوں ہم یوز کر سکتے ہیں. سر تھینک یو فار یور انپٹ. اینی ون فرام دا گرلس؟ سر بیسیکلی آئی تھنک کمیونیکیشن از لائف. جیسے ہمارے پروفٹ پیس پہ نے کہا کہ ہم نے صرف چیزوں کو سمجھ نہیں لینا اور چپ نہیں کر جانا، ہمارا کام ہے کہ ہمیں اس کو پھیلانا ہے اور وہ پھیلانا ہی ہماری زندگی کا بیسک مقصد ہے، اینڈ دیٹ از کمیونیکیشن. ونڈرفل، تھینک یو، جزاک اللہ. جی اور کوئی؟ سر اس کو دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، کمیونیکیشن از لائف اینڈ کمیونیکیشن ان لائف. جی جناب. کہ زندگی میں کمیونیکیشن کی کیا امپورٹنس ہے ان لائف، اینڈ کمیونیکیشن از لائف. کیونکہ اگر گفتگو نہیں ہے، بات نہیں ہے تو پھر زندگی کیا ہے؟ کیونکہ مردے کلام نہیں کرتے، اس لیے زندگی میں بات کی جو ہے نا بڑی اہمیت ہے. جناب جی، اگر ہم کہیں کہ ایون اے ڈیڈ کمیونیکیٹس، تو ڈو یو اگری ود دیٹ؟ ایون اے ڈیڈ کمیونیکیٹس، ڈو یو اگری ود دیٹ؟ آف کورس a dead communicates death. Is that so or not? So اب دیکھیے، جب ایک مردہ کمیونیکیٹ کرتا ہے تو زندہ کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہوگی. ایک لمحے کو اگر ہم اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں تو اگر ایک مردہ کمیونیکیٹ کرتا ہے تو ایک زندہ شخص کے لیے کمیونیکیشن کی کتنی اہمیت ہوگی. اور جس گھڑی آپ اس بات کو سمجھیں گے تو آپ کو ایک اور بات کا احساس اور اندازہ شاید ہوگا کہ آپ کی کمیونیکیشن کی امپروومنٹ کی کتنی ضرورت ہے. کیونکہ آپ عام لوگ تو ہیں نہیں. ساتھ والے کی طرف منہ کر کے کہیے، آپ کو پتہ ہے ہم عام لوگ نہیں ہیں. کہیے ساتھ والے کو، آپ کہیے ذرا ان کو. یا دیٹس ونڈرفل. ہم عام لوگ نہیں ہیں، اور جب آپ عام نہیں ہیں تو عام کا حساب بھی عام نہیں ہوگا. کہیے ساتھ والے کو. عام تو نہیں ہو سکتا نا. خاص کا حساب خاص ہوتا ہے، عام کا حساب عام ہوتا ہے. اور ہم لوگ تو منتخب ہیں، ایسے ہے نا، منتخب ہوئے ہوئے. میرے والد صاحب مجھے ہمیشہ یہ بات فرماتے ہیں کہ ایک تو سید ہو اور پھر استاد ہو تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ خدا تم سے زیادہ پوچھے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے اس دفعہ یہ جو 5 اکتوبر کو اساتذہ کسی کے حوالے سے دن تھا تو میں نے ایک اخبار کے لکھا تھا، تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ جو جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان سب شعبوں کا سید شعبہ استاد شعبہ ہے. تو اس اعتبار سے تو اب سارے سید ہیں، آپ عام لوگ تو نہیں ہیں. اور ساتھ والے کی طرف منہ کر کے کہیے، سن کر سننا سکھایا جا سکتا ہے. 3 دفعہ کہیے ساتھ والے کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے سننا نہیں آتا اسے سنانا تو آتا ہے، سنانا نہیں آتا. کہیے ساتھ والے کو. بات پہنچ رہی ہے؟ اس سے پھر کیا ہوگا؟ سنانا تو آتا ہوگا لیکن سنانا، ایک سنانا سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. اور سمجھانے والے کو جب ہم کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہے تو سمجھدار سنتا ہے اور سنتے ہوئے سر دھنتا ہے، پھر کہیں وہ سنا سکتا ہے. اور اگر سنانے والا کہتے کہ مجھے علم ہے
आप सुना रहे हो किसी को बात और आगे से कोई कहते मुझे पता है, तो फिर उसका पता कराए, क्योंकि उसे अक्सर पता नहीं, क्योंकि जिसे पता होता है वो बहुत कम है ये कहे कि उसे पता है। उसकी वजह ये है कि देखिए आपके हमारी तरफ इल्म तो आता है और हम अक्सर अपनी तरफ आने वाले इल्म को अपने ही शोर की नज़र कर देते हैं। और वो शोर कैसे होता है मुझे पता है। और जिस घड़ी आप कह दें कि आपको इल्म है, तो क्या कोई और इल्म आपके यहाँ जगह बना पाएगा? क्यों साहब जी? नहीं होगा, क्योंकि आपने तो जगह ही नहीं रखी। शटर्स, हम अपनी नफ्सियात में कहते हैं शटर्स गिराएंगे, और ये सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहम ला यरदून, यही तो है। यानी जिस घड़ी आपके पास बात और आपसे टकरा के अगर हम तक वापस आ गए, तो उसका मतलब आप इतने भरे हुए हैं, इतने मुकम्मल हैं कि आप लोगों को फिर अधूरा करने में दिलचस्पी रखेंगे। आपने मुकम्मल तो नहीं होने देंगे, क्योंकि आप तो मुकम्मल हैं। अब मैं लम्हा भर को रुकूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि खड़े हो जाइए प्लीज़। अभी तक जो मैंने गुफ्तगू की है, इसी गुफ्तगू पर मैं चाहूँगा इसका इआदा या रीकैप, इसको ज़रा दोहरा लीजिए सामने वाले के साथ। सो प्लीज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ गेट बैक टू योर सीट्स। थैंक यू, गेट बैक टू योर सीट्स। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू फेलोज। अब ज़रा, if I ask you a very simple question and I want one word answer, I request you to give me one word answer. What are you feeling at the moment? I'm not asking what are you thinking at the moment, rather what are you feeling at the moment? One word, even if you're feeling sleepy, talk about it. Pleasant. Pleasant. One word, but this should be a feeling. Present. Pleasant. Afraid. Alert. Confident. Happy. Thoughtful. Come on, please. Energetic. Cold. Social. Do you want me to turn off AC? That's what you're talking about. Okay. Can you please? This is communication in one word. Oh yeah, it's so cool. Like you didn't say this to me that turn on AC, but you said that cold. You asked what are you feeling? Yes, that's my question. That's my question. Yes, come on. आपकी आपस में तो बेतकल्लुफ़ी होगी ना? Yes. तो आपका हमसाया अगर बोल नहीं रहा तो उसे कोहनी मार के कहिए बोलना। Drained. Lord. जी. Give me one word, please. Feeling what? अच्छा, वो बोलना बोला है। Yes, come on. Feeling what? It's part of communication, so please tell me. सब अपना अपना बोल लेंगे तो फिर मैं इसके ऊपर नेक्स्ट एक्टिविटी कर सकता हूँ। Please come on. What are you feeling at the moment? Should I ask like this? What are you feeling at the moment? I said happy. Happy. You, sir? Good. Good. Sir? Energetic and Energetic. Confident. You, sir? Energetic. You, sir? Good. Happy. Ma'am? Thoughtful. Alert. Energetic. Afraid. Present. Normal. All are abnormals? Normal, yes, come. As you, okay. Relaxed. Good. Attentive. Comfortable. Confident and friendly. Okay. Now you would be telling the fellow sitting next to you, why are you feeling like that? Am I clear? Yeah. अब आपने साथ वाले को बताना है आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो? Come on, please tell. Thank you. Could you tell? Yes. Okay, those who are sitting on my right, ये जो मेरी राइट साइड पर बैठे हैं, उन्होंने मेरे लेफ्ट साइड वालों से बात की है, ऐसा ही है, और लेफ्ट वालों ने उनसे बात की। अब मेरे राइट वाले मुझे बताएंगे कि लेफ्ट वाला ऐसे क्यों फील कर रहा था। उसने बताया होगा ना, इन्हें आपको बताया होगा ना, वाइफ इज फीलिंग हैप्पी और व्हाटसोएवर। फरमाइए वो क्यों? द प्लेटफॉर्म, ओके, गिवन अ प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ दैट। इधर से कुछ आप तीनों में से को बताना चाहें? He told us that he is feeling energetic because he is learning something. Okay, so learning makes us feel energetic too. That's Environment also affects. That's wonderful. That's cool. What did he say? सर कह रहे थे कि engage कर रहे हैं आप और एक तरह से happy हैं, pleasant है। Because you're engaged. जी, thoughtful इन्होंने कहा क्यों? हाँ जी, thoughtful इसके कहा सर, I basically gave the word alert.
So we made the consensus that she is also feeling alert basically. Okay. But she used the word thoughtful. Thoughtful. Alert and thoughtful in the sense that we are here after a very hectic day from work. Okay. And we were tired, but just by the activity that you just did, we are alert. You're alert. Yes. Why she's afraid of? क्योंकि वो बात हुई थी ना अभी के हिसाब होगा ज़्यादा देना पड़ेगा तो This made you afraid of? But that's the reality, my dear. That's it. एक दफा बिल्कुल दिल ऐसे करके हुआ अल्लाह कि अकबर। ये तो हमने मतलब सोचा नहीं इतना, इस चीज़ को हम सोचते ही नहीं है. So, ma'am, this means I could communicate. I could communicate. That was an effective communication that worked. That's wonderful. I'm really grateful to you. क्योंकि इस तरह आपने मेरी भी हाज़िरी लगवाई है. वो यही होता है ना. Jazakallah. Thank you. Ji, why you were alert? Energetic. Why is she energetic? You please tell me. Because you are doing some activity to engage all of us. That's the reason. Yes. Why she's not feeling anything? Come on, please. You tell. वो कह रहे हैं nothing. आप बताइएगा. It's a normal routine for her. That's why. And she was present or pleasant? She said I am present, that's why I am feeling present. Present. Okay. You being present. That's understand. You. What did she say? Sir, feeling good because No. What's she feeling? उनका बताना है आपने मुझे. कम्युनिकेशन के बारे में बताया. कम्युनिकेशन लाइफ है, इसमें लाइफ में बोलना, दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके हमें पता चलेगा उसकी फीलिंग्स क्या हैं, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, हमारे जो वो क्या फील कर रही थी? रिलैक्स. ठीक हो गया. थैंक यू. जी. मैम कंफर्टेबल. मैम ने कहा मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ. क्यों फील कर रही थी वो? एसी टर्न ऑफ हो गया था. पहले कोल्ड फील कर रही थी, एसी टर्न ऑफ हो तो वो. अब यहाँ पर एक लम्हे को रुकते हैं बिकॉज मैं बहुत रिलेट कर रहा था इस चीज़ को. एसी के बंद होने से फौरी तौर पर तो असरात मुरतब नहीं होते. तो ये असरात कहाँ मुरतब हुए होंगे? That is the question. अच्छा, ऑब्वियस. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ये फौरी तौर पर उसके असरात मुरतब हुए. इसका मतलब ये है कि अगर हम रिसेप्टिव हों तो असरात फौरी तौर पर मुरतब हो सकते हैं. ये जुमला 3 दफ़ा साथ वाले को कहिएगा. Come on, please. जज़ाकल्लाह. शुक्रिया. और रिसेप्टिव करना किसका काम होता है? जो जिम्मेदार होता है. The one who wants to communicate something. That's my job. अब जिस घड़ी आपने कहा कि I'm feeling cold, I read it, the meaning that you wanted to share. मैंने साहब से दरखास्त की, वो बंद हुआ और उसका फौरी तौर पर नतीजा निकल कर आया. और अगर आपके कोल्ड को मैं कोल्ड बिहेवियर के तौर पर लेता तो शायद मेरे उस तरफ ध्यान भी ना जाता. तो मेरा काम क्या है? इंगेज करना. जिस तरह बाकी सब साहिबान ने, खातीन ने भी ये बात फरमाई. अगर मैं आपको इंगेज नहीं कर पाऊंगा तो कैन आई बी अ ट्रेनर? तो ट्रेनर इज द वन हु नोज हाउ टू इंगेज एंड कीप्स ऑन इंगेजिंग. इट्स नॉट लाइक दैट कि एक जुमला बोल के ठीक है हो गया, उसके बाद फिर वही. और मेरे साथ मिलकर एक जुमला बोलिए. मैं हर ट्रेनिंग सेशन में जाके बोलता हूँ, आपके साथ भी. आपने उसको मेरे साथ जिस तरह मैं कहूँगा उसी तरह आपने कहना है कि कुछ लोग थके हुए होते हैं. कहिए. और जबकि कुछ लोग थके हुए होते हैं. अब देखें, कुछ लोग तो हाथ भी नहीं उठा पाए. फिर से कहते हैं इसको. कहिए. थका दिया. मैं वही आपसे अर्ज करता हूँ, कोई किसी को नहीं थका सकता वैसे. अच्छा, कुछ लोग थके हुए होते हैं. कहिए. जबकि कुछ लोग ये इस तरह हाथ उठाइए प्लीज. और जो इतने थके हाथ नहीं उठ रहा, साथ वाला मदद कर सकता है. और मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, ये जो थके हुए होते हैं ना, यही अक्सर थके हुए होते हैं. जो कि कहते हैं मौत क्या है? थकन ख्यालों की. आपके जिस घड़ी ख्याल थक जाते हैं, आप थक जाते हैं. पढ़ाने वाला जब कहता है ना मैं थक गया, तो यकीन मानिए वो पढ़ा के नहीं आ रहा. मैं चाहूँगा कि 1 से 1.5 मिनट इसके ऊपर अब साथ वाले के साथ ज़रा गुफ्तगू कीजिए कि जिस घड़ी पढ़ाने वाला कहता है मैं थक गया, इसका मतलब वो पढ़ा के नहीं आ रहा. कहिए ज़रा साथ वाले.
शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैं सिर्फ देखिए, मैंने इब्तदाइये में आकर अर्ज़ किया था कि आप प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स हैं जिनकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ, तो मैं आपको सबक पढ़ा तो नहीं सकता, सबक सुना तो सकता हूँ, और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। और हम लोग इस वक्त जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम किस तरह चीज़ों का हिस्सा बन सकते हैं, जिसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। हम इस वक्त एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू अ चांस, प्रोवाइडिंग यू विद अ चांस, एंड यू आर अवेलिंग इट ऑफ। मैं आप ही से आपकी मुलाकात का मैंने सिलसिला किया हुआ है और आप ही से आपको मिला रहा हूँ। मैं एक 4 जुमले थोप नहीं रहा, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और फिर आपको मौका फराहम करता हूँ कि आप इसके ऊपर तबसरा कीजिए साथ वाले के साथ। एक लम्हे को भी मैं नहीं कह रहा, जो मैं कह रहा हूँ वो हर्फ हक है, वो आप तक आता है, आप अपने हिसाब का हक उसमें से निकालिए, चूँकि आपका काम है यही, सारा दिन यही तो काम है। हमने कम्युनिकेशन के ऊपर बात की, मैं थोड़ा अपना तारुफ करा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं लाइफ कोच हूँ और स्पेशली मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, और पाकिस्तान में ये काम बहुत कम हो रहा है, तो इसलिए मेरा क्लाइंट भी पाकिस्तान में नहीं होता, जिसमें ये हस्बैंड वाइफ के ख़ास तौर पर रिलेशनशिप्स हैं। बल्कि मेरी अगले महीने इसके ऊपर एक और किताब भी आ रही है कि रीअपेयर टू रिपेयर, यानी इस रिश्ते में हमें बार बार रीअपेयर होना पड़ता है रिपेयर करने के। उसके अलावा मैं ट्रेनर हूँ, मैंने कुछ 6 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेन किए हैं, मैंने 26 किताबें लिखी हैं एज अ राइटर। उसके बाद जनाबे वाला, ये सर्टिफाइड मैं लाइफ कोच और रिलेशनशिप कोच हूँ USA से, और सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर फॉर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट हूँ मैं UK से, और इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल से मैं ट्रेनर हूँ। ATE और TKT इंग्लिश और टीचर्स के हवाले से ये प्रोग्राम्स थे ब्रिटिश काउंसिल के, इसकी वजह से पूरे पंजाब में हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई थी। उसके अलावा ये 6 लाख से ज़्यादा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के प्रोफेशनल्स को मैंने ट्रेन किया है, और मेरा इदारा है सेब्स इंस्टीट्यूट के नाम से, सैयद इजाज़ बुखारी इंस्टीट्यूट। 92 से हम लोग काम कर रहे हैं। IELTS, TOEFL, स्पोकन इंग्लिश, राइटिंग स्किल्स के कोर्सेज़ हो गए, CSS के हो गए, क्योंकि मैं जुडिशल अकेडमी भी पढ़ाने के लिए जाता हूँ, MPDD भी पढ़ाने के लिए जाता हूँ, ये पुलिस जो चोंग है वहाँ पर भी ट्रेनिंग कराने के लिए जाता हूँ। तो इन एरिया लोगों के साथ मेरा है, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ भी। और उसके अलावा मैंने 85 कोर्सेज़ बनाए हैं, ESP इसे बोलते हैं, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अंग्रेज़ी वाले लोग ख़ास तौर पर इसको जानते होंगे, अगर यहाँ वो लोग तशरीफ़ फरमा है तो। इसमें यह होता है कि जो लॉयर को अंग्रेज़ी चाहिए वो डॉक्टर को नहीं चाहिए, जो डॉक्टर को चाहिए वो ब्यूटिशियन को नहीं चाहिए। तो मैंने कोई 85 प्रोफेशंस के ऊपर उन्हें ना सिर्फ बनाया बल्कि उन्हें एग्जीक्यूट भी किया है ESP का। और उसके अलावा किताबें मैंने आपको बताई 26 लिखी हैं मैंने। उसके बाद जनाब वाला, ये जो हमारा आज का सेशन है, ये मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मुझे मुख्तलिफ़ औक़ात में काम करने का मौका मिलता रहा है। इसके ऊपर हम देख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है कम्युनिकेशन को, उसके रोल को। देख लीजिए, ये नॉन वर्बल वर्बल को हमने इनको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है। जब मैं आपको दावत फ़िक्र दे रहा था, ये मेरा काम तो यही था ना कि दावत फ़िक्र दूँ, और फिर बज़रिया ज़िक्र आप उस फ़िक्र के ऊपर बात कर रहे थे। जब मैंने आपको कहा कि साथ वाले से बात करके देखिएगा। अब ये तस्वीरें आपके सामने अगर आपको नज़र आ रही हैं तो प्लीज़ ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, आपने इनके ऊपर एक्टिविटी करनी है। लेकिन उससे पेशतर मैं ये चाहूँगा कि मैं आपके ग्रुप्स बनाना चाहूँगा। कोई यहाँ लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ। आप जनवरी में पैदा होने वाले लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जो जनवरी में पैदा हुए हैं, आप में से कोई फरवरी, आप भी इधर खड़े हो जाइए। मार्च, आप भी सर इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। अप्रैल, आप इधर आ जाइए मैम, आप भी या आप हाँ इधर ही आ जाइए। मई, जून, आप सर उधर आ जाइए। जून, जुलाई, जून के साथ जी आइए। अगस्त, इधर आ जाइए। सितंबर, आप भी मैम इधर आ जाइए। अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर साथ आ जाइएगा, आप भी सर इधर आ जाइएगा। नवंबर, इधर मैम खड़े हो जाइएगा। दिसंबर, इनके साथ आ जाइए। थैंक यू। अब ये देखिएगा, ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, इनमें से अपनी मर्ज़ी के कोई 3 तस्वीरें निकाल कर आपने साथ वाले को बतानी है कि ये क्या कहानी कह रही है। कम ऑन प्लीज़, स्टॉप प्लीज़, स्टॉप एंड स्टे। आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहिएगा। अच्छा, ये जो ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं कि आप ग्रुप के अंदर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और जब भी ट्रेनर, चूँकि आप ट्रेन द ट्रेनर के लोग हैं,
जब भी ट्रेनर किसी को ग्रुप में खड़ा करके बात करने का मौका देता है तो वो ये जहन में रखे कि जो उसने कहा है उसके अलावा बात ज़रूर होगी। अपने ग्रुप के अंदर ही बात दोहराइएगा कि जो वो कहेगा उसके अलावा बात ज़रूर होगी, ज़रूर, यानी वो तो हो या ना हो, उसके अलावा बात ज़रूर होगी, ठीक है ना। और उसकी बुनियादी और उसकी वजह मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, चूँकि ट्रेन द ट्रेनर, चूँकि दे आर योर फ्यूचर ट्रेनर्स, तो ट्रेन द ट्रेनर के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो क्या करेगा। उसको इस बात पे नज़र रखनी चाहिए कि वो इधर उधर की बात करेंगे, और साथ ही साथ ये देखना है कि जब वो इधर उधर की बात करें और वो कान पड़ जाए तो अपने मुंह को ख़राब नहीं करना। हाँ सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ इस बात। तो उन्होंने अपने मुंह को ख़राब नहीं करना है जी, कि ज़ाहिर है उन्हें मौका फराहम किया गया, दे वुड, वो कहते दे गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स, वो होता है, करेगा। दूसरी बात आपने क्या देखनी है, इतना ज़्यादा वक्त नहीं दे देना कि फिर वो जहाँ एक तरफ से निकले हैं तो फिर कहीं और निकल लें, उसका भी नहीं। और तीसरी बात, जब भी आप ग्रुप बनाते हो आपने ये देखना है कि क्या ग्रुप के अंदर हक दिया जा रहा है या हक मारा जा रहा है, जो कि बहुत आम होता है ग्रुप के अंदर। यानी कोई एक होता है जो लीड करना शुरू करते हैं, वो खातून भी हो सकते हैं, वो हजरत भी हो सकते हैं, वो लीड करते हैं और वो फिर क्या करते हैं, किसी कहते हैं हाँ आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, और साथ ही साथ उसको बोलने नहीं दे रहे होते। इट्स प्रीटी कॉमन, हमारे यहाँ रोज़मर्रा में आमतौर पर देखा जाता है। अच्छा, दूसरी बात उसमें जो देखने वाली है, जो सबसे अहम है, वो ये है कि आपने क्या वक्त उन्हें दिया था भी कितने बजे शुरू करोगे और कब तक ख़त्म करोगे, ये बड़ा अहम होता है। अच्छा, और अगर आपने ये उन्हें नहीं दिया तो वो फिर बोलते रहेंगे। और फिर आप क्या कर सकते हैं, आप खुद ही से कह देते भाई आधा मिनट रह गया, भाई 1 मिनट रह गया, ताकि वो रैप अप करें। और चूंकि आप TOT वाले लोग हैं, आप लोगों को तो खुद देखना था इस चीज़ को, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, कि क्या आपने अपने जहन में कोई 1-1.5 मिनट का अरसा या 2 मिनट का अरसा रख के सबको बराबर बराबर काम करने दिया। अब ज़रा हम इसी के ऊपर रिफ्लेक्ट ऑन करते। 3 तस्वीरें थी। बेहतरीन तरीका ये था कि सब एक दूसरे से कहते भी अपनी अपनी तस्वीरें सेलेक्ट कर लो। नंबर 1, मैंने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, चूँकि मैं अब आपको इंस्ट्रक्शन की अहमियत समझाना चाह रहा हूँ। तीनों को फ़ौरन क्या करना चाहिए था, भी अपनी अपनी एक तस्वीर सेलेक्ट कर लो पहले, या 3 कर लो। जब उन्हें कर ली, अब एक तस्वीर आप बताओ, एक आप बताओ, ताकि अगर मैं कह दूँ स्टॉप प्लीज़ तो सब कुछ ना कुछ तो कह चुके हों। और अगर एक साहब खड़े 3 के ऊपर बात कर रहे हैं और वो ख़त्म ही नहीं हो रही बात उनकी, तो और मैं कह स्टॉप प्लीज़ तो बाकी 2 हमारी तो बारी नहीं आई। साथ वाले की तरह मुँह करके कि बारी आती नहीं, बारी ली जाती है, बारी ली जाती है। तो हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू ट्रेनर का मतलब यही होता है ना कि आपने ट्रेनिंग करानी है। मैं आपको पहले से सारी इंस्ट्रक्शंस दे दूं और फिर काम कराऊं, वो तो होता है। जब आपका एक अमल हो गया और उसके ऊपर हम जब करते हैं तो वो होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। वी एक्सपीरियंस्ड इट, नाउ यू पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड इट। और अगर मैं आपको पहले सारे उसूल व कवायद समझाता, यूँ होता है, ये होता है, ये होता है, सूरत हाल मुख्तलिफ होनी थी। तो ये जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश की बात, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक एक जुमला से ही अपने ही ग्रुप के अंदर आपने कहना है, एक एक जुमला। और जुमला क्या होगा, आपको इस एक्टिविटी से सीखने को क्या मिला, ये आपने अपने ग्रुप में गवाह करने हैं, लोग बताना है उनको। जी, थैंक यू वेरी मच, बट स्टे देयर, वहीं पे रहिएगा, आप लोग नहीं, बैठना नहीं है, वहीं रहिएगा प्लीज़, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा है, अच्छे लग रहे हैं आप लोग इस तरह से ज़्यादा। अच्छा, अब मुझे आपने एक सवाल का आपने जवाब ढूंढना है इसी के अंदर खड़े खड़े, कि आप लोगों की जब गुफ्तगू हो रही थी, उस गुफ्तगू में आपको क्या नज़र पड़ी कि आपके इर्द गिर्द कुछ ग्रुप्स थे जो एक्टिव ही नहीं थे? हाँ, अब देखिए, एक होती है खुद पे नज़र रखना, एक होती है इर्द गिर्द पर नज़र रखना। हमारी ऐब देखने वाली नज़र खुद पे होनी चाहिए और बेहतरी देखने वाली नज़र दूसरों पे होनी चाहिए। दोनों में फ़ायदा हमारा ही है, दोनों में, मजहबी एतबार से भी ज़ाहिर है हमारा फ़ायदा है। अच्छा, फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ, एक आध ग्रुप था जो बहुत ही एक्टिव नहीं था, ठीक है। हम लोग जब जाते हैं ट्रेनिंग कराने के लिए, आप लोगों को भी ज़ाहिर मौका मिलता भी होगा, ज़ाहिर पढ़ाने वाले लोग तो है, वो तो हो ही रहा होता।
ट्रेनिंग में जब भी आप जाओगे ना, 1-2 लोग आपको उसमें सड़ियल ज़रूर मिलेंगे। मेरा इसके ऊपर आर्टिकल है, सीरियस सोबर सड़ियल होते हैं। अच्छा, अब सड़ियल आप जो ही यहाँ आके खड़े होते हैं, पहली नज़र में सड़ियल पहचाना जाता है, चूँकि वो आपको देख के सड़ जाता है जी। अब सड़ियल का ख्याल क्या रखना है कि आप पूरी ट्रेनिंग में सड़ियल की तरफ तवज्जो नहीं देनी। आप उसकी तरफ ध्यान देंगे, वो आपको साड़ेगा, और जिस घड़ी वो आपको साड़ेगा पूरे सेशन को साड़ के रख देगा। आई एम टेलिंग, दैट्स माई एक्सपीरियंस। नेवर। और आपके इल्म में है कि 35 मिनट की क्लास के अंदर 10 मिनट बाद आने वाला बच्चा 20 मिनट हमारे ले जाता है। ये जुमला पहुंचा नहीं आप तक, तो मैं इसलिए चाह रहा हूं कि इसको ज़रा 1 मिनट के लिए आपस में पहुंचाइए इस जुमले को। बड़ा अहम जुमला है, पहुंचना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं कि वो जो सबका वक्त होता है वो एक के हिस्से में डालना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैंने उसके फ़ौरन बाद आपकी खिदमत में एक जुमला पेश किया कि 35 मिनट की क्लास में 15 मिनट बाद आने वाला बच्चा 20 मिनट आपके ले जाता है। उसका मतलब क्या है? पहले तो अगर उसके साथ आपका ख्याल आप रखना चाहते हैं, क्लास के बाद उससे बैठें कि आपके ज़रा जो नुकूश थे वो दुरुस्त नहीं थे, जिस घड़ी मैं आपसे बात कर रहा था या बाकी लोग आपसे बात कर रहे थे, तो उसको क्लास में कभी भी। और दूसरी बात है कि नसीहत भी ना करें आप। देखिए, कम्युनिकेशन में आप दावत दें, हिदायत मिन जानिब अल्लाह है। हम दावत दे सकते हैं, और जो दावत देने के बाद जज्बाती हो जाता है ना, वो हिदायत देने में दिलचस्पी रखता है। ये बड़ा अहम जुमला है और चबा चबा के खाने वाला, अगर आप तक पहुंचा सकूं तो है जी। दावत जो है वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर दावत दे सकता हूं। अब मेरी दावत के बावजूद जो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला रहे, मुस्कुराने वाली बात पर वो सड़ने में दिलचस्पी रखते हैं, मैं उनके लिए हिदायत की दुआ कर सकता हूँ। और मैं सारी गुफ्तगू उन्हीं की तरफ मोड़ दूँ, काहे को भाई वो इतने अहम कहाँ से हो गए और आप इतने गैर अहम क्यों हो गए? बात पहुँच रही है ना? तो एक दफ़ा साथ वाले की तरफ मुँह करके एक दफ़ा मुस्कुरा तो दीजिए। जी साहब, ऐसे मुस्कुरा दीजिए। हाँ, ये आप कर सकते हैं सर। जिस घड़ी आप ये कहेंगे ना साथ वाले की तरफ देख के मुस्कुराएं, तो सड़ियल को मुस्कुराना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी साथ वाले पे चली जाएगी। हाँ, हो गया सर। ये जरा देखिएगा, ऑल द मीनिंग्स आर गिवन येट दे आर मेड। और मैं कपल्स कोचिंग जब हम करते हैं कपल्स की, तो वो यही होता ही कॉन्टेक्स्ट होता ही। बल्कि कल परसों एक अखबार में मेरा आर्टिकल छपेगा मियाँ बीवी के बाद। मेरी एक है फ़िक्रा बदलें ज़िंदगी बदलें, ख़ास तौर पर हस्बैंड वाइफ के लिए मैं कहता हूँ। और वैसे मेरा एक और आर्टिकल है कि लफ्ज़ों से ज़्यादा लहजे लहूलिहान करते हैं। लफ्ज़ उतनी तकलीफ़ नहीं देते जितना लहजे जाकर देते हैं। वो मैं एक जगह ट्रेनिंग कराने के लिए गया, वहाँ सारे हेड मास्टर्स थे, रिटायरमेंट के करीब थे, तो वो यहाँ पंजाब में आए हुए थे, उन्हें ट्रेनिंग करा रहे थे हम लोग। तो वो ना कुछ 40-50 की क्लास थी, कोने में बैठे हुए थे वो साहब। तो मैंने उन्हें कहा कि यार कल से आप लोग वापस जा रहे हैं तो घर में ज़रा सूट वूट बेगमात के लिए लेकर जाएगा, आप 1 महीने बाद जा रहे हैं, खुशी होगी, तोहफ़ा तो ज़ाहिर खुशी देते। तो एक बड़े भारी भरकम से साहब वहाँ खड़े हुए और वहाँ मुझे फरमान लगे, ला के जानने होने जी। मैंने कहा जिस तरह आप देते होंगे समझ आ गया। बात पहुँच रही है? तोहफ़ा देना तोहफे से ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ पेश करते हैं तो उससे, इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि लफ्ज़ों से ज़्यादा लहजे लहूलिहान करते हैं। और आप अगर अपने रोज़मर्रा में देख लीजिए, आपको अंदाज़ होगा, दिस ऑल कम्युनिकेशन, यही तो ज़िंदगी है। तो कॉन्टेक्स्ट मेड, और होता है विच हेल्प्स टू मेक देम कॉन्टेक्स्ट, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि अनहर्ड एंड ऑल दैट। आपने गलत फहमी से बचना है ना, उसका बेहतरीन तरीका यह है कि जब आपसे कोई बात कर रहा हो, उसकी बात को सुन के कुछ 30 सेकंड का कम से कम वक्फा ले लें जवाब देने में। जो 30 सेकंड का वक्फा ले लेते हैं वो जवाब देते हैं, और जो नहीं लेते वो जवाब देते हैं। कहिए ज़रा साथ वाले को। हाँ, मेरे वाला जवाब ही है, जवाब ही है, खुद ही ऐसे हो गया। आई न्यू इट। सो ये अब ऑटो के ऊपर आ गया ना सर। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे को कहीं देखें और वो थोड़ा यूं करके और आप उनकी तरफ देख के कहें, पॉसिबिलिटी इज देयर। ये देखिए, जब एक उस्ताद
आंखें घुमा कर देखता है तालिबुल इल्म की तरफ या अपने किसी भी रिश्ते की तरफ, उस्ताद नहीं, कोई भी रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के हो गए, छोटे बहन भाइयों के हो गए, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो उसका मतलब होता है, उसका भी मतलब होता है। साथ वाले की तरफ मुंह करके के मतलब होते हैं, कहिए, इसीलिए तो निकाले जाते हैं। 3 दफ़ा कहिए। नहीं, उसके होना ज़रूरी है ना जी। यानी हम लोग मतलब का भी मतलब निकालते हैं। कहिए साथ वाले को, हम लोग क्या करते हैं? मतलब निकालते हैं। इट्स वेरी कॉमन एंड कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह से किसी ने कहा सर मैं बताऊं इसका ये मतलब है, और आपने उसे घूर के देखा, तो मैसेज कन्वेड, यू कम्युनिकेट। अब उसको अंदाजा हुआ कि आपने डिसअप्रूव किया है। इसी तरह से मुस्कुरा दिया। अक्सर असातिज़ा कहते मैंने पता सी तू करेगा इंज, मैंने पता सी तू इंज ही करेगा। कितना आलिम उस्ताद है और कितना बेसब्रा है। देखिए साहब, आलिम अगर साबिर ना होना, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं होता। आलिम का साबिर होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ताइफ में यही दर्स दिया। और चूँकि आप पढ़े लिखे लोग हैं तो मैं जुमला आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि खालिक रहमत लिल आलमीन ने रहमत लिल आलमीन के पास मैसेज भेजा था। जुमला पहुँचना ज़रूरी है। कौन भेज रहा है? खालिक रहमत लिल आलमीन। अरे किसके पास भेज रहा है? तो क्या पहाड़ गिरना था? कहा था ना, कहो तो पहाड़ गिरा, पहाड़ गिरना था? नहीं गिरना। तो आपने क्या फरमाया? इन्हें कुछ देना है तो हिदायत दीजिए। मैं दावत दे रहा हूँ, आप तो हिदायत तो उनके साथ है। तो दिस व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, सब्र। और हमारे यहाँ जब आप कहते हैं मैं फिर सब्र कर लिया, असल तुसी जबर कर लिया। चूँकि जो सब्र कर लेता है वो बेचैन नहीं होता। साबिर बेचैन नहीं होता, जाबिर बेचैन होता। अक्सर सासें कहती हैं कि मैंने फिर सब्र कर लिया, बहू कहती है मैंने फिर सब्र कर लिया, मुझे पता है इसका हल तो कोई नहीं, तो फिर मैंने सब्र कर लिया। और जिस घड़ी वो सब्र कह रही होती हैं, उनका चेहरा देखें तो ऐसे जैसे अभी कड़वा घूंट ले रही हैं दवाई का। तो सब्र तो ना हुआ ना साहब, वो क्या हुआ? आप हम करते हैं। मैं इस तरह का जुमला आपकी तरफ से आया, मैं उस पर हैरान हुआ। हेक्टिक रूटीन, अल्लाह अकबर। हेक्टिक, Do you know what does it mean? आप जब किसी चीज़ को कबूल नहीं करते वो हेक्टिक हो जाती है। 5 दफ़ा कहिए साथ वाले को, कहिए ज़रा। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, तकलीफ़ के वजूद को भी जो तस्लीम कर लेता है उसे तकलीफ़ कुछ नहीं कहती। प्रॉब्लम ये कि हम उसके वजूद को नहीं तस्लीम करते हैं। कुछ होते हैं जो, देखिए ज़िंदगी, हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी है जी जी के मर जाने का नाम। ऐसा ही है ना ज़िंदगी। और हम में से अक्सर मर मर के मर जाते हैं। तो जब आप मर मर के मरोगे जी जी के मरने वाली ज़िंदगी को, तो क्या होगा? ज़िंदगी को इसलिए भी कभी नहीं कहना चाहिए मुश्किल है, हालांकि सिजनुल मोमिनीन भी कहा गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह को तफसीर पढ़ा रहा हूँ पिछले 10-11 साल से। आई कैन टेल यू वन थिंग, आप सिर्फ एक ही चीज़ जहन में रखिए कि ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी के बग़ैर आपको अता हुई है। क्या ऐसा है कि नहीं? और किसने अता की है? रब्बे कायनात ने। तो उस अता को अच्छी तरह गुजारना क्या होगा? बड़ा लतीफ़ नुक्ता, अगर आप तक पहुँचा पाओ तो जनाब, कि उसकी अता है और मैं इसे जी के दिखाऊंगा कि उसका हुक्म का मैं नतीजा हूँ, तो मैं तो इसे जी के दिखाऊंगा। और अब आप हर लम्हा ये कहते हैं ये कोई ज़िंदगी है? आप देखिए ज़रा, यहाँ पर थोड़ा सा बदलावा देखिएगा कम्युनिकेशन का। आपने कहा ये कोई ज़िंदगी है, और जिस घड़ी आपने कहा यही तो वो ज़िंदगी है, हल्की सी तब्दीली आई है, ज़िंदगी बदल के रह जाएगी। और जिन जिन तक मैं ये बात पहुंचाने की कोशिश करूं, अगर उनके हाथ से लफ्ज़ लेकिन उठ रहा है अंदर से कि बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन
لیکن یہ لیکن آپ کو مار ڈالے گا، کیونکہ میں آپ ہی کی خوشی کی آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ اپنی خوشی میں دلچسپی نہیں رکھتے تو لگائیے لیکن. ہے جی، بڑی گمبھیرتا چھا گئی آپ لوگوں کے چہروں پہ، اچھا بھی لگا. ہاں تو لیکن والی بڑی اچھی آپ نے سر، لیکن والی بات آپ نے بہت اچھی کی. لیکن تو ہوتا ہے نا سر. پچھلے اس میں سے میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ تم نے ایسے کرنا، اگر ہم اس کو پازیٹیو سینس میں کہیں کہ بچے نے آنسر کیا، ہم کہیں مجھے پتا تھا کہ تمہاری طرف سے ضرور آنسر آئے، دیٹس دا بیسٹ تھنگ. یہ ہم کر سکتے ہیں. کائنڈ آف بیسٹ تھنگ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس گھڑی آپ نے تمہاری طرف سے کہہ کے زور دیا اس چیز کے اوپر، تو ہو سکتا ہے باقیوں کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھ کے بالکل کیا جا سکتا. اور آپ نے وہی مثال جو میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے صرف ہلکا سے ایک آدھ لفظ آگے پیچھے کیا اور زور کچھ لفظوں پہ دیا، صورتحال بدل کے رہ گئی. یہی تو ہمیں سمجھنا ہے. آپ اور ہم عام لوگوں کی زبان، میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل اردو میں لکھا تھا کہ استاد حرف کی حرمت کا امین ہوتا ہے. استاد عام آدمی نہیں ہوتا، وہ عام لوگوں کو زبان عطا کرتا ہے. رائز اینڈ فال آف دا ٹون، آپ کا جو لب و لہجہ ہے، جو آواز کا زیر و بم ہے، وہ استاد کے ہاں ہی تو ہے. اور استاد کے سمجھ آ گئی ہے نا تینوں، I'm sorry, I'm really sorry, one has to be careful. استاد کو تینوں تو کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. میری زبان پنجابی نہیں، لیکن مجھے بہت پسند ہے یہ زبان. پنجابی میں دیکھو، اسی تسی خدا قسم جان نکال لیتے، کیا خوبصورت لفظ ہے. اسی دسیا سی نا، تسی سنیا نہیں نا. چینجز، اینڈ دس از واٹ ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ. اور جس گھڑی آپ اس کو سمجھ لو گے، صاحب انہی کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا ویسے آپ کے ساتھ آئے، میں نے کہا ہے تو میں پیر میں لے آتا. پھیز نو ہی، میں نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ عادتیں ڈال کر توجہ کی، عادتیں بے توجہی سے مار ڈالا ہے. یہ ویسے بھی شوہرانہ اور بیویانہ ہے، یہ ہوتا ہی ہے میم. دیٹس پارٹ آف لائف، دیٹس پارٹ آف لائف. اب حالانکہ جس نے عادت ڈالی ہوتی ہے اس کو اپنی عادت پہ نظر رکھنی چاہیے. چونکہ ساتھ والے کی طرف منہ کر کے کہیے عادتیں ہوتی نہیں ہیں. کہیے ساتھ والے کو، عادتیں ڈالی جاتی ہیں. کہیے 3 دفعہ. یہ دیکھیے، اوور ہیئرس اینڈ اگنورز، یہ بڑا اہم ٹکڑا ہے ہماری زندگی کا قانون ہے کمیونیکیشن میں. یو اوور ہیئر، سنا گویا نہیں سنا، یعنی اثرات مرتب نہیں ہوئے آپ کے، اس کے نتائج مختلف ہوں گے. اینڈ پیز نو ہیڈ، توجہ نہ دینا، سب کے اثرات ہوتے ہیں. یہ بھی تصویریں ہیں جو آبویسلی کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ بات کیجئے اپنے ہمسائے کے ساتھ. Loneliness is a punishment. That's why I think worst criminals are kept separate. You agree or disagree? Please say this to the fellow sitting. You have 1 minute for this discussion with the fellow sitting next to you. Come on, please. آپ اس سے agree کرتے ہیں، disagree، آپ کا ہمسایہ گواہ ہے اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ دیکھیں، یہاں سے یہاں تک کا سفر، mind it or mind it, only you can motivate yourself. وہ بڑا خوبصورت کسی کا شعر ہے کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا. دیٹ از یور جاب. اور میں نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ تم تو اپنے ہی نہیں ہو سکتے، غیر کا خاک تم نے ہونا ہے. جو اپنا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا. بلکہ یہ ایک ڈرامہ آیا تھا میرے پاس تم ہو، میں نے اس سے پہلے ایک ریکارڈنگ کروائی تھی کہ میرے پاس میں ہوں. میرے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہے، موقع ملے تو دیکھیے گا. آپ کا آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا بڑا ضروری ہے، اور آپ کو کوئی خوش نہیں رکھ سکتا اگر آپ اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ سکتے. 5 دفعہ ساتھ والے کو بتائیے، آپ کو یہ مینٹل ہیلتھ یہی تو ہے. یہ جو مینٹل ہیلتھ، اور بلکہ میرا ایک آرٹیکل چھپا بھی ہے اس کے اوپر، میں آپ شیئر آپ کے گروپ میں آپ سے شیئر کروں گا. مینٹل ہیلتھ ہے یہ. آپ اگر اپنی خوشی کا خیال نہیں کر سکتے، کوئی آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا.
قبر اپنی ہے نا تو سمجھ بھی اپنی ہونی چاہیے. اور رب کائنات نے بڑا واضح فرما دیا کہ قیامت والا دن وہ ہوگا جب کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. پھر بھی سمجھ نہ آئے میرے پاس میں ہوں کا کیا مطلب ہے, تو بات تو ختم ہوگی. آپ پہلے اپنے ذمہ دار ہیں, پھر آپ کسی اور کا ذمہ دار ہیں. یہ جو ہمارے یہاں قربانی کا استعمال ہوتا ہے نا لفظ, بڑا غیر مناسب استعمال ہے اس کا. یہ بھی دیکھیں تصویر کچھ نہ کچھ تو کہہ رہی ہے. دیکھیں سب بیٹھے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اگین وہ جو نان وربل ہے, یہ ذرا ساتھ والے کو تو سنائیے گا, ساتھ ہمسائے کو سناتے جائیے گا. Could you understand? آپ دیکھیے لفظوں کے اوپر زور دینے سے معانی, مفاہیم, مطالب بدلتے چلے گئے. اور آپ صرف ایک لمحے کو, بلکہ میں ابھی, مجھے چونکہ آدھے پونے گھنٹے کا وقفہ ملا یہاں انتظار کا, تو میں نے اس میں بیٹھ کے نیچے, میں نے کہا ایک اخبار کے لیے لکھنا تھا, میں وہ لکھ لیتا ہوں. تو میں بیٹھا وہ لکھ رہا تھا, تو اس میں نے اسی سے متعلق ایک بات بھی کی کہ آپ لوگ اکثر نا ہسبینڈ وائف, یہ بہت عام ہے, صاحب آ کے بیٹھے خاتون خانہ کے ساتھ اور کہنے لگے مجھے نا تمہارے ساتھ ایک بات کرنی ہے, لیکن تم نے آج تک میری بات سنی تو نہیں. صاحب بھی اسی طرز پر, وہ خاتون خانہ بھی اسی طرز پر فرماتی ہے کہ میں نے نا تاڑے نال گل کرنی سی, پھر تسی آج تک میری ایک منی تے نہیں, وہاں سنی نہیں. ہاں منی. مجھے بتائیے اس کے بعد گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے؟ گفتگو تو وہیں سواہا ہو جاتی ہے, وہیں ختم ہو جاتی ہے. اور یہ آپ کی ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے. اگر وہ یہ جملہ نہ کہتے کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے, اچھا پھر کیا ہوتا ہے, خواتین کو کہیں نا کہ آپ سے مجھے ایک بات کرنی, میں 1 منٹ آ رہی ہیں. اچھا جس گھڑی وہ کہتے ہیں میں 1 منٹ آ رہی ہیں, وہ 1 منٹ سڑیل ترین مومنٹ ہوتا ہے مرد کے لیے. وہ جو گیپ ہوتا ہے وہ نیگیٹو کر دیتا ہے اس کو. اور اگر وہ جو بھی اس کے ہاتھ میں برتن تھے اس نے ساتھ سائڈ پہ رکھے, ہاں دسو, زندگی بدل جائے گی. ہلکا سا ہے نا, دس از کمیونیکیشن. So one has to understand these things and things change. اور it's not just with men اور with women, دونوں کو ظاہر ہے رشتہ تو ان کا ہے, خوش یا خراب ہونا تو انہوں نے ہی ہے. مہریبین نے ایک ریسرچ کی تھی 1971 کی, یہ ہے, جس میں اس نے کہا کہ 55% آپ کا دکھنا دکھتا ہے, 55%, اور 37% کیا ہے, آپ کی آواز, اور پیچھے رہ گئے 7% علم. اور ہمارے ہاں 100% علم ہوتا ہے, ہم تو ہوتے نہیں. اور ہمارے ہاں سادگی کے نام پہ جتنا ظلم ہوتا ہے اللہ معاف رکھے. یعنی 3-4 دن وہ نہیں نہائے, بڑے سادہ ہیں وہ, بنتے سنورتے نہیں ہیں, صاف ستھرے نہیں رہتے, جو کہ بڑے بلا کے سادہ ہیں وہ. نہ بابا, آپ کا دکھنا, اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خود بھی سونا ہے, سونوں کو پسند کرتا ہے. دیٹس واٹ ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کا دکھنا بہت زیادہ ضروری, بیکاز یو آر بینگ کاپیڈ. ساتھ والے کی طرف منہ کر کے کہیے ارے آپ کو علم ہے کہ آپ کی نقل کی جاتی ہے, کہیے ساتھ والے کو. اور جس کی نقل کی جاتی ہو, اور جس کی نقل کی جاتی ہو, آپ نے کہا ساتھ والے کو جس کی نقل کی جاتی ہو, اس کو اصل میں کتنا اصل ہونا چاہیے, کیونکہ نقل کی جاتی ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, آپ کا پیرہن, آپ کا لبادہ لباس, آپ کے کمبینیشنز, جو کلرز کے, ایوری تھنگ از بینگ کاپیڈ. آپ ہی کی ذمہ داری ہوتی بھئی آپ تو خیر ہے, ارے آپ کو دیکھا جاتا ہے. اور پھر ساتھ والے کی طرف منہ کر کے کہیے جب ہمیں علم ہے کہ ہمیں دیکھا جاتا ہے, کہیے تو ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے کہ ہمیں دیکھا جاتا ہے, دیکھنا چاہیے نا. And the moment you do that, you're on a track where you need to be. And then, یہ دیکھیں, یہ دیکھ لیجیے, کمیونیکیشن. اب تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیسا دکھنا ہے. آج ویسے کتنا کمال ہو جائے جب آپ اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں اور گھر والے کہیں کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں, کتنا ہی اچھا ہو جائے. اچھا لیکن ایک ہوتا ہے, ہم لوگ, میں چونکہ کپل کوچنگ کے لیے جاتا ہوں, لوگ بلاتے ہیں سیشنز کرانے کے لیے,
तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप सेशन करके जा रहे हैं, घर वालों ने नहीं सेशन किया होगा। बात पहुंच रही? चूंकि वो बड़ी तवक्को लेकर यहाँ से जाते हैं कि आज हम यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा, वो करेंगे। अरे मैं यार, उसने सेशन थोड़ी लिया। अब इसके ऊपर एक बड़ा अहम जुमला, लतीफ़, चूँकि आप उस्ताद हैं तो मैं ज़रा आपके साथ जो लतीफ़ जुमले उनका तबादला कर रहा हूँ। आपने अच्छा अमल किया, मसलन आज आप घर जाते हैं, आप अपने घर में एक अच्छा अमल करते हैं और तलाश में है उस अच्छे अमल के सिले की, और सिला वो नहीं मिला, उसके बरक्स हुआ, तो बहुत बुरा हुआ ना आपके साथ। और अगर एक लम्हे को आप समझ लें कि अच्छा अमल बज़ाते खुद सिला है जो मिल चुका होता है, ये बड़ा लतीफ़ जुमला है। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा चबा चबा के खाइए ज़रा साथ वाले के साथ मिलके, कि अच्छा अमल बज़ाते खुद सिला है जो मिल चुका होता है। कहिए साथ वाले को। ये तौफीक सिला ही तो है। आप देखिए, ये खुदा कसम ये जुमला पहुंचना चाहिए, ये पहुंचना चाहिए आप तक। आपने जिस घड़ी ये कहा कि मैंने बड़े आसान तरीके से अपने किसी रिश्तेदार के साथ गुफ्तगू की और उसने आगे से बदतमीजी की, कोई भी रिश्तेदार है, आपने क्या किया? आपको ये तौफीक किसने दी? तो ये तौफीक सिला नहीं है जो आपको मिल चुका है। आप अगर इस पे करेंगे बात तो बदतमीजी करने वाले के लिए हिदायत की दुआ करने का ज़र्फ पैदा होगा, नहीं तो क्या होगा? आप उलझ पड़ेंगे, और जिस घड़ी आप उलझ पड़ते हैं तो शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, आप फिर खुद शिकार हो जाते हैं। और कम्युनिकेटर को इसी चीज़ को ही तो समझना है, और जब वो समझता है तो वो आगे बढ़ता है, नहीं तो फिर रह जाता है। ये देखिए, साथ वाले की तरफ मुंह करके उसे गवाह बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एजुकेशनिस्ट। कहिए, वी आर ऑब्जर्व्ड, वी आर फॉलोड। जनाब, हम क्या हैं? मॉडल्स हैं, हम रोल मॉडल्स हैं। साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए, हम हैं तो रोल मॉडल्स, लेकिन अक्सर रोल मॉडल्स। कहिए, हम हैं तो रोल मॉडल्स, लेकिन अक्सर रोल मॉडल्स रोल के रख देते हैं। You get that? Yes. हम हैं तो रोल मॉडल्स। ये आपको टेक अवे हो जाएगा, यू कैन कीप दिस विथ यू। एक और टेक अवे भी है आपके लिए। असल में मैं ना 3:30 के हिसाब से तैयारी करके लाया था, मुझे पता नहीं था वो 4:15 होते हैं। ये सब दे दीजिएगा। तो मैं ज़रा इसको उसी तरह से रैप अप कर रहा हूँ चीज़ों को, चूँकि मुझे 5:20 तक आपको ये करना है। ये सिर्फ इसके ऊपर अपना नाम लिख लीजिएगा और आज की तारीख और बस अपने पास रखिएगा। करवानी तो मैंने इसकी एक्टिविटी थी आपको। आप ज़रा इस एक्टिविटी को भी करते हैं 1 मिनट के लिए। आपने ये वाली कहानी सुनानी है अपने साथ बैठे शख्स को। When you communicated your concern with your, किसी से भी, स्टूडेंट से, सिबलिंग से, स्पाउस से, किसी से भी, आप इसको ज़रा एक दफ़ा साथ वाले को कम्युनिकेट कीजिए। और ये कम्युनिकेट कौन करेंगे? जो मेरी राइट साइड पर बैठे हुए हैं वो लेफ़्ट साइड वालों को कम्युनिकेट करेंगे, मेरी राइट वाले लेफ़्ट को। कम ऑन प्लीज़ कम्युनिकेट दिस। जी सरकार, could you do that? आप फिर रुकते हैं और फिर आपसे पूछते हैं what are you feeling at the moment? Yes, come on. जी, now you would be sharing what are you feeling at the moment. Let's start with you, ma'am. आप मैम। जी जी। नहीं, what are you feeling at the moment overall? Like पिछले 1-1.25 घंटे से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो what are you feeling at the moment? जी मैम। Why? क्या मैं टॉपिक के मुतालिक बात कर रहा हूँ? आपको लग रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ लाइफ या कम्युनिकेशन इन लाइफ? आपको लग रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ? आपको लग रहा है? जी मैडम, आप?
मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर यू फीलिंग एट द मोमेंट, ये पूछ रहे 1 घंटे में. Why is this so, my dear? Because you are providing us with opportunities. Yes. Wonderful. अगर मैं इधर खड़ा होकर खिताब फरमाता रहता, यकीनन उस्ताद का, ट्रेनर का काम जाग लगाकर बेशक सो जाए. जनाबे वाला. कुछ लोग होते जाग भी नहीं लगाते और जागते भी रहते हैं, अपनी भी आंखें सूजी हुई, अगलों के भी सूजी हुई. जी, आप लोगों में से कौन आपको लगता है बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वर है आप लोग के यहाँ? आप लोग मुझे बता सकते हैं? आपकी नज़र में तो कोई ना कोई होगा ना, क्योंकि आप ये कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? ऑब्जर्वेशन जिसकी बड़ी गज़ब की है, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है. और हाँ, होता है. सर हमारा आपस में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन आज तक नहीं हुआ जितना आज आपने करवाया. अल्लाह सिर्फ अकबर. सुनते हैं, मतलब जो भी हमें बताते हैं. टू वे कम्युनिकेशन चैनल यूज हुआ है कुछ सेशन में, मतलब लेकिन ये ग्रुप नहीं हुआ. इतना ज़्यादा असल में मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ कि जो ट्रेनिंग रूम्स होते हैं, आप में से अगर किसी को इंटरनेशनल ट्रेनिंग का तजुर्बा हो तो वहाँ बहुत कम होता है कि सिर्फ चेयर्स रखने की जगह. हम लोग ट्रेनिंग्स कराते हैं, हम उन सबसे कहते हैं हमें हॉल दें और कुर्सियाँ साइड पे लगी हों, जो कि पता नहीं नीचे कारपेट और कारपेटेड होते हैं वो, जो कि आपने नीचे भी बैठना है. आपने अब इतनी सारी एक्टिविटीज़ थी कम्युनिकेशन की, इतनी ज़बरदस्त एक एक्टिविटी है जो कि हम लोग कराते होते हैं, वो मैं नहीं करा पा रहा यहाँ पर. सो मैनी एक्टिविटीज़, वो उसमें काफ़ी दौड़ धूप है और वो ज़रा कारपेटेड होती है, चूँकि ये स्लिपरी फर्श है, इसीलिए ट्रेनिंग रूम जितने भी आप देखेंगे वो आपको कारपेटेड नज़र आएंगे. ट्रेनिंग रूम्स आपको कारपेटेड, और वहाँ पर एक्टिविटीज़ भी. तो यहाँ पर मैं इसलिए कोशिश करता हूँ इससे परे हटने की, लेकिन ये मुझे बांध के रखता है इनके साथ कि आपने जो है ना यहाँ खड़े होकर बात करनी है. बिकॉज ट्रेनर्स जॉब इज़ नॉट टू स्टैंड एट वन प्लेस, कीप्स ऑन कमिंग, कम्युनिकेटिंग विद जी मैडम आप फरमाइएगा, व्हाट आर यू फीलिंग एट द मोमेंट? सर वेरी प्रेजेंट फीलिंग, और हम काफ़ी इसमें एंगेज रहे, हमें काफ़ी कुछ सीखने का, लर्न करने के, समथिंग न्यू एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस वाज न्यू फॉर यू. जी मैम. बहुत अच्छा लगा, और इसमें ये भी सोच आई है कि इसको हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जज़ाक प्रोफेशनल और पर्सनल. जज़ाकल्लाह, थैंक यू. यस मैम आप फरमाइएगा. एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जनाब. डिस्कशन है, जनाब, फीलिंग मोर एंगेज्ड, दैट्स कूल. नॉट स्लीपिंग. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. जी आप मैम? गुड. गुड. रीज़न? नहीं कि वो डायरेक्टली बस लेक्चर सुनते हैं, हम रूटीन जो मैंने ऐसे कहा नॉर्मल रूटीन की तरह हम आए हैं, फिर सुनते हैं, लेक्चर चले जाते हैं. तो कुछ लेक्चर्स में ऐसा नहीं है, हम इंगेज हुए हाँ, हैं, हाँ. बट अब थोड़ा सा जब कम्युनिकेट किया तो मेरा एक ना बड़े पीर घराने से ताल्लुक़ है, तो एक जुमला बोला जाता है कि पीर फड़ छड़िया तो मुरीद कर छड़िया, दो मने छड़िया. समझ रहे बात को? इसी तरह से अगर कोई सुना रहा हो और वो कहते हैं कि उन्हें सुना छड़िया असी सुन छड़िया, दो मने छड़िया. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट्स ऑलवेज टू वे. जैसे सर ने भी कहा कि यू इंटरेक्ट एंड देन यू टॉक बैक. जी जी मैम आप? मोटिवेटेड. इम्प्रूवमेंट की, यानी कि मुझे लगता है बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे डिस्कस हुए हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट हम सबको ज़रूरत होती है, हम सबको, मुझे भी, हम सबको. जी मैम. सर मैं बहुत इम्प्रेस हूँ और बहुत एनेक्शियस हूँ कि मैं मज़ीद आपकी बातें सुनूँ. मेरे अल्लाह के करम से. बहुत ही अच्छा लग रहा है. ऑनर्ड एंड हम्बल्ड. सर बहुत एक्टिव सेशन था, जैसे मैडम लोगों ने कहा कि जितने भी सेशंस हुए, आई थिंक मैं खुद अपने आप को सबसे ज़्यादा एंगेज इस सेशन में मैंने पाया. Otherwise you don't हाँ get जी. engaged. Other thing is I'm very thankful that you were here today because I had so many questions in my mind. Oh. And my basically ये जो आप रिलेशनशिप हवाले से और आप जी, जी, फैमिली जी. मैटर्स के हवाले से आपने जो थोड़ा सा किया है हाईलाइट, I have found the answers, so I'm very thankful. God bless you, my dear. जी. Sir, you have created a real communication in this room. This is my first ever interaction with her, and Oh, that's wonderful. And within this interaction, I have moved from formal to informal communication. That's with her. wonderful. That's cool. That's great. Alhamdulillah. Thank you, sir. Sir, I'm feeling delighted, and the reason behind it, मैं एक लतीफ़ इंसान से लतीफ़ जुमले सुन रहा हूँ. Honored and humbled. लतीफ़ इंसान बनना चाहता हूँ और मैं अपने जुमलों को भी लतीफ़ बनाना चाहता हूँ. Jazakallah. It's a great opportunity for me, and I wish कि मुझे इन फ्यूचर आपको मतलब बहुत ज़्यादा सेशन में सुनने को मिले आप, ताकि मैं आपसे लर्न कर सकूँ और फिर अपने स्टूडेंट्स के अंदर वो चीज़ें इंकलकेट कर सकूँ. मेरे अल्लाह के करम से. Thank you very much. Jazakallah. Sir. Sir, again present, and the reason is actually I have the feeling that I didn't waste the time. That's wonderful. That's really cool. Happy to know. Sir. सर
सर गुड एंड थॉटफुल, इतनी सारी बातें जो पता चल रही हैं, इन सबको सोचना, मज़ीद सोचना, प्रैक्टिस करना, अगेन पता होने के बाद बड़ी जिम्मेदारी कि आपने ये काम करना है और उनका ज़्यादा ख्याल रखना आइंदा इंशाल्लाह ताला विल ट्राई। और बस एक सवाल था आपसे सर आप कॉलम्स की बात कर रहे थे कि हमें कॉलम्स आपके कहाँ से मिलेंगे? ये सर ये अभी आप लोगों से मैं फीडबैक एक लूँगा, अपना जो पर्सनल लेता हूँ इन लोगों का तो है, उसमें फिर आप लोग अपना नंबर शेयर करते हैं, उसमें फिर आप लोगों के ग्रुप्स बन जाएंगे, लड़कियों का अलहदा, लड़कों का अलहदा, और उस ग्रुप के अंदर जो भी मुझसे मुतालिक चीज़ें वो मैं शेयर करना शुरू कर दूँगा। और दूसरा मेरा जो फेसबुक है उसके ऊपर भी मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जी, वो जहान पाकिस्तान है कोई, वो वाले इस तरह से कुछ है, हाँ पता कुछ है सही ऐसे उनके यहाँ। और वैसे इसके मेरा जो लिंक्डइन है उसके ऊपर भी मेरे अंग्रेज़ी में पढ़े हैं। जी सर, ऑनर्ड सर। एक्टिव पार्टिसिपेशन थे और बायलैटरल कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन में आपको कुछ बोलना पड़ता है, सोच के बोलना पड़ता है। जनाबे वाला, जनाबे वाला, जनाबे वाला। जी सर। पहले भी मैं आपसे मुतारिफ हूँ, यूट्यूब पे भी सुनता रहता हूँ। जनाब तो हमेशा कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ अच्छा। हम सब सीखते हैं सर एक दूसरे से। जज़ाकल्लाह सर। Cool, great, thank you, honored, sir. Sir, feeling content कि अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें सुनी हैं, समझी हैं, उनको मैंने फुली तौर पे अंडरस्टैंड किया, तो कोशिश करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए कम्युनिकेशन का मैं जो बात ख़ास तौर पर पहुंचाना चाह रहा हूँ, कम्युनिकेशन का सेशन हो और उसमें कम्युनिकेशन ना हो तो वो सेशन तो नहीं हो सकता। अच्छा, फिर यह कि अगर मैं खड़ा होकर बात करता रहूं और आप सुनते रहें, वो भी नहीं हो सकता। इसको ज़रा देखिए क्या है। है जी, बात पहुंच रही है ना? इसी तरह से ये देखिए, फौरी मिलने वाला जो सिला होता है ना, वो कम भी हो तो बड़ा होता है। इंस्टेंट रिवॉर्ड इज द एक्चुअल रिवॉर्ड। आज की बात को क्यों कल पे उठा रखा है? जो भी हो जाए यहीं हश्र में क्या रखा है? बस मुझे ये देखिएगा ज़रा, एक नज़र इसको भी देख लीजिएगा। ये वैसे आपसे शेयर हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर लिखा था कि सेंड करके डिलीट करते हो, सेंड करके यूं तजस्सुस को फीड करते हो। बात पहुंच रही? तो आप एक लम्हे पर अगर गौर कीजिए तो गैजेट्स हमारा वक्त ले रही हैं, और आप सूरह वो जो वलस्र है उसकी तफसीर पढ़ के देखिए, आप गैजेट से हट जाएंगे, क्योंकि उसमें कसम ही वक्त और ज़माने की गई। गैजेट्स आपका वक्त ले रही हैं, एक लम्हे को, और वही वक्त आप समझते हैं आप अपने आप को दे रहे हैं, हालांकि वो आप किसी और चीज़ को दे रहे हो, और जिसमें आप या तो खुश हो वो करके, खुश भी तो नहीं होते। इट्स वेरी सिंपल। और जिस घड़ी आप ये देखेंगे, यानी आपकी गैजेट आपके बच्चे होने चाहिए। मेरी वालदा हमें कहती हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं ये स्ट्रेस रिलीजिंग कैप्सूल्स होते हैं। आप जितने परेशान, आप बस इनके साथ खेलना शुरू कर दें, ये उड़ा के बाहर फेंकते हैं बीमारियों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को। और क्यों करते हैं? चूँकि इन्हें खुदा से आए हुए इतना वक्त नहीं हुआ होता। ये अभी भी खुदा वाले होते हैं। हम तो ज़िंदगी में और चीज़ों से मुड़ चुके होते हैं, और जिस घड़ी हम इनके साथ जुड़ते हैं हम खुदा से जुड़ जाते हैं। फिर क्या होना शुरू हो जाता है? वो जो बैटरी रिचार्ज होना शुरू हो जाती है। देन वी गेट बैक टू वर्क। आप करके देखिए। और बच्चों के साथ बच्चा बनने की कोशिश में बच्चा बन जाने वाले रिफ़्रेश होके आते हैं, और जो उधर भी थॉट प्रोसेस करवाते हैं, मैं यूँ करूँगा तो बच्चा यूँ करेगा, मैं वो करूँगा तो बच्चा वो करेगा,
जा बे, उसके बाद कुछ नहीं होता। उसके बाद जनाबे वाला ये ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। ये आपको मैंने हैंड आउट 21 रूल्स वाला दिया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आस्क मी क्वेश्चन, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड दैट। कोई सवाल आपके मन में हो आप पूछना चाहे, मैं हाजिर। जी सर। सर वो सड़िए वाला जो है ना बात अभी तक खत्म नहीं हो रही सर ये उसको हमने इग्नोर कैसे करना है? बिकॉज के आउटलायर्स जो होते हैं ना वो अटेंशन ले रहे होते हैं कि यहाँ हम सब लोग बैठे हैं, एक सड़िए लोग आप उधर बात कर रहे हो फिर आप उधर खींच लेगा, आप इधर बात कर रहे हो फिर आप उधर खींच लेगा, तो हाउ मैं आपको एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करता हूँ कि आपने देखा होगा ये छोटी बच्चियाँ ये 3-4 साल की होती हैं ना, ये आप ख़ास तौर पर मामा उनकी शॉपिंग करके आए, दादो नानो वगैरह सब बैठे हुए शॉपिंग की शादियों के मौके पर होती, वो बच्चियाँ ना भाग के कभी इधर से गुजर जाती हैं, कभी उधर से गुजर जाए, कभी उधर से, और अम्मा मारती है धप पीछे से। वही बच्ची दौड़ती हुई जाती है दरवाजे के पास, मुँह करके दांत निकालती है और अम्मा सड़ के रह जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अम्मा देखती थी कि कोई उसको तकलीफ़ हुई और उसने दांत निकाल कर क्या बताया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? ये वाला नुक्ता अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए, जो बच्चा सिखा रहा है कि जब तक आप ये नहीं समझते कि आपको कुछ नहीं होता तब तक आपको कुछ नहीं होता, और जिस घड़ी आप ये समझ लेते हैं, अब जिस तरह का वो तवज्जो ले लेता है, अम्मा यार दे क्यों रहे तवज्जो, उसको दे तो आप रहे हो ना तवज्जो। ज़िंदगी में कभी कोई किसी को हर्ट नहीं कर सकता जब तक कि आप उसे इजाज़त ना दें अपने आप को हर्ट करने की। फिज़िकली नहीं, मेंटली की बात कर रहा हूँ। कैसे आप किसी, हमने अब यहाँ पर भी मैं जब हाज़िर हुआ हूँ तो मुझे भी सामना था, आपने देखा मैं कहीं सड़ा नहीं, सड़ा ना। तो आपने इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि आप ज़िम्मेदार हैं। अगर ज़िम्मेदार उलझ पड़े तो वो खुद ज़िम्मेदारी बन जाता है, और हमारे यहाँ अक्सर ज़िम्मेदार ज़िम्मेदारी से उलझते हैं और नाम क्या लगाते हैं, मैं उसे ठीक कर रहा हूँ। तुम खुद ठीक थोड़ी हो, और ये हस्बैंड वाइफ में भी ये होता है। तो ज़िम्मेदार उस्ताद ज़िम्मेदार है, बच्चा उसकी ज़िम्मेदारी है। अक्सर मैं बच्चों से कहता हूँ, जब आपको कोई कहे ना कि उस्ताद कहते ओए तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो हम कहते उस्ताद के कहिए एक लम्हे को रुकिए, मैं शीशा लेके आता हूँ। सामने उस्ताद के शीशा रखिए और कहिए फिर ज़रा इरशाद फरमाइएगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्हें समझ नहीं आ रही। और जिस घड़ी मुझे समझ आ जाए कि उन्हें समझ नहीं आ रही तो मैं तरीके ढूंढूंगा ना समझाने के। और अगर मैं कहूँ कि नहीं इसे समझ नहीं आ रही चूँकि मेरे समझाने का तरीका ख़त्म हो गया, ना मेरी जान, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो किसी को अपने आप को उलझाने मत दो सुलझाने के नाम पर। दिस वर आई कैन से। जी जी फरमाइए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वैसे, फरमाइए सर। वैसे तो हम सब ज़ाहिर है अपने हिस्से की क्षमा जलाने हैं यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है, जिस तरह मतलब इतने साल हो गए पढ़ते हुए पढ़ाते हुए, आज आपसे इतनी ज़बरदस्त बातें सुनी हैं जनाबे वाला, मतलब इतनी स्टेजेस चेंज हुई, प्राइमरी स्कूल था, मिडिल था, सेकेंडरी था, कहीं भी सर इस तरह नफीस उस्ताद नहीं मिलते। तो पॉइंट ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या सारी ज़िंदगी हम बिया का नेशन ऐसे ही रहेंगे, या हमारे टीचर्स को कहीं ट्रेनिंग के लिए आप जैसे लोग मिलें और वो मतलब उनकी ट्रेनिंग्स हों, फिर आगे वो उसी तरह से बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे जो हैं वो उसी तरह डेवलप हों? इसका सर कोई सोल्यूशन है? जी मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं जिसका मैं हमेशा सब लोगों से जो अर्ज़ करता हूं कि मुझे इस बात का इल्म है और एहसास है, तो मैं ज़िम्मेदार हूं और मुझे अपनी ज़िम्मेदारी को हसन तरीके से निभाना चाहिए। और जिस घड़ी मैं देखता हूं कि जो मैं नहीं कर सकता मैं उसका सोचना शुरू कर देता हूं, तो उसका एक नतीजा ज़रूर निकलता है कि जो मैं कर सकता हूं मैं वो भी नहीं करता। मुझे क्या करना है, जिस तरह अभी आपने फरमाया कि हम अपने हिस्से की शमा रोशन कर रहे हैं। अब मुझे 90 मिनट यहाँ पर मिले, मेरे हिसाब से 90 मिनट से ज़्यादा थे, मुझे बार बार उन 45 मिनट का दुख खाया जा रहा है जो चीज़ें मैं नहीं आपसे कर सका। तो अब क्या है कि वो पूरा वक्त जो मुझे मिला, अब मुझे मिला भाई मेरे पास 45 मिनट कम थे 2 घंटों में से, मैंने उसके हिसाब से वही चीज़ें कराई जो मैं समझता था ज़रूरी हैं कि ये कम अज़ कम इन तक पहुँच जाए। मैंने अपना किरदार अदा कर लिया, मेरे रब के हुजूर भी हाज़िरी लगवा ली, आपके हुजूर भी हाज़िरी लगवा ली, एंड दैट्स इट। दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है आप हम जिस दौर के लोग हैं, क्योंकि मैं भी कोई फ़िरौन के दौर का नहीं हूँ, आप हम जिस दौर के लोग हैं उसमें उर्दू हमें अच्छी सुनने को मिली है। अब बच्चों को अच्छी उर्दू सुनने को नहीं मिल रही तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। यानी हमें तो रोल मॉडल्स मिले, हम रोल मॉडल बने या नहीं बने। आज भी आप 70-80 की दिहाई की पुरानी फिल्म्स या ड्रामास जो हैं
وہ اٹھا کے آپ سننا شروع کر دیں, آپ کے لب و لہجے وہی ہوں گے جو استاد کا ہونا چاہیے. اور جب آپ کو سنیں گے تو بچوں کا لب و لہجہ بھی وہی ہوگا. اور اگر ایک اردو کا استاد کمرہ جماعت میں تشریف لاتے اور فرماتے کتاب نکالنے کون سا سبق پڑھنا ہے اور وہ ہے اردو کا, تو بس پھر کیا ہو سکتا. تو اپنا خیال رکھ کر لوگوں کا خیال رکھیں, تبھی ٹھیک ہوا. میں نے اس پر لکھا تھا کہ دل کی حالت کو خیالات بدل دیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات بدل دیتے ہیں. حالات نہیں, خیالات سے تبدیلی آتی ہے. آپ جس گھڑی اچھا سوچو گے سب کچھ اچھا ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں جہاں آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ تو مجھے پتہ ہے, یہ تو کیا بات ہوئی, تو اس کا مطلب اس کے لیے تو پھر کچھ بھی نہ ہوا نا. جی جناب والا, اینی کوسچن فرام دا گرلس؟ سر کمیونیکیشن میں جو لسننگ ہے وہ اپنی, کیونکہ کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو لسننگ ہے, جب آپ کسی کو اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں, اٹ از آلسو اے وے آف شوئنگ دیٹ پرسن رسپیکٹ دیٹ آئی ایم لسننگ ٹو یو. بٹ وین یو آر ٹاکنگ اینڈ somebody is not listening to you, تو پھر آپ کیا کریں ایسی سچویشن؟ دیکھیں جب آپ کو کوئی سنتا نہیں نا تو اس نے اصل میں آپ کو مانا نہیں ہوتا, اسی لیے پہلے منوانا ہوتا ہے پھر سنانا ہوتا ہے. آپ کو جب تک کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, دیکھیے میرے ساتھ مل کے ایک جملہ بولیے, کہیے جو مانتے ہیں, کہیے وہ پھر مان رکھتے ہیں. 3 دفعہ کہیے. آپ نے مان لیا. اب دیکھیں صوفے کے اوپر بیٹھ کے 3 دفعہ قبول ہے کہہ دیا, مان رکھنا ہے اس رشتے کا, ایسے نہیں ہے وہ. اور دنیا کے خوبصورت ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے, مان رکھنا ہے نا. اور مان کہتے ہیں بھرم رکھنا. اور اپنی عزت کو بے عزت کرنے والا عزت دار ہو سکتا ہے؟ ساتھ والے سے پوچھ کے دیکھے 3 دفعہ. اپنی عزت کو نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ, یہ آپ کے پاس ہے, اور میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو ایکسپیرینشیل لرننگ دوں تاکہ آپ کمیونیکیشن کو اس طرز پر نہ دیکھیں 7 C's ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آئی ڈنٹ ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس. میں نے کوشش کی کہ آپ کو آپ کے ساتھ جوڑ کے آپ سے بات کی جائے.